اسیری سے لوٹ آنے پر حجی نبی۔ بچوں آئیں اسرائیل کے ان نبیوں کی یادیں تازہ کریں جن کے متعلق ہم پہلے جان چکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سوالوں کے جواب دیں۔ اسرائیل کی محکومی سے پہلے کون کون سے نبی آئے؟ ہوسے، آموس۔ یہودا کی محکومی سے پہلے کون کون سے نبی آئے؟ یسایہ، یوئیل، میکا، صفنیاہ۔ یہودا کی سلطنت کی پہلی اسیری کے بعد وہ کون سا نبی تھا جس نے بابل کے شاہی محل میں نبوت کی؟ دانیال۔ یہودا کی سلطنت کی دوسری بار بابل کی اسیری کے دوران وہ کون سا نبی تھا جس نے اسیر لوگوں میں نبوت کی؟ حزقیال۔ کون سا نبی تھا جس نے یہودا کے باقی ماندہ لوگوں کے ساتھ یہودا ہی میں رہنا پسند کیا تاکہ خدا کی باتیں بتاتا رہے؟ یرمیاہ۔ کون سا نبی تھا جس نے یہودا کی محکومی کے بعد ادوم کے بارے میں نبوت کی؟ عبدیہ۔ کون سا نبی تھا جس نے طویل ترین دورانیہ کی نبوت کی؟ دانیال، 76 سالوں سے اوپر۔ عبدیہ نبی نے خاص طور پر کس غیر ملکی سلطنت کے متعلق نبوت کی؟ ادوم۔ حبقوق نبی نے خاص طور پر کس غیر ملکی سلطنت کے متعلق نبوت کی؟ بابل۔ ناہوم نبی نے خاص طور پر کس غیر ملکی سلطنت کے متعلق نبوت کی؟ اسور۔ کون سا نبی تھا جو کاہنوں کی بستی انتوت میں پیدا ہوا؟ یرمیاہ۔ بچوں جن نبیوں کے متعلق ہم نے ابھی تک سیکھا وہ سب یہودا اور اسرائیل کی محکومی سے پہلے اور اس کے دوران آئے۔ آج ہم جس نبی کے متعلق سیکھنے کو ہیں وہ یروشلم کی اسیری سے واپس لوٹنے والوں میں سے حجی نامی ایک نبی تھا۔ بچوں آئیں یہ نام پھر دہرائیں۔ حجی۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا اسرائیلی ابھی تک ذہنی طور پر محکوم ہی تھے، اسی لیے انہوں نے 15 سالوں تک ہیکل کی تعمیر روکے رکھی۔ مگر اب یہ گھر حجی نبی اور زکریا نبی کی ہمت افزائی کی وجہ سے مکمل تیار ہو چکا تھا، ورنہ پہلے تو خدا کے گھر کی تعمیر کا کلیدی کردار زروبابل اور بڑا کاہن یشوا اس کی تکمیل سے مایوس ہی ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں خدا نے نبیوں کو اٹھایا کہ لوگوں کو ہمت دلائیں اور ان میں خداوند کے مسکن کو پھر سے تعمیر کرنے کا ولولہ جگائیں۔ آئیں دیکھتے ہیں حجی نے کس طرح لوگوں کے جذبات میں تحریک جگائی۔ حجی نے لوگوں میں سوچ بچار کی لہر جگائی۔ حجی نے پہلے تو لوگوں کی سرزنش کی۔ حجی 1 باب 2 سے 4 آیت۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا۔ تب خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مسقف گھروں میں رہنے کا وقت ہے؟ جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے۔ نبی نے بات کا آغاز اس طرح کیا کہ لوگوں کو صرف اپنے عیش و آرام کی ہی فکر ہے۔ انہیں اپنے لیے پر آسائش گھر چاہیے، مگر خدا کی عبادت کے گھر کے لیے کہتے ہیں ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا۔ تب نبی نے لوگوں کو یاد دلایا۔ حجی 1 باب 5 سے 7 آیت۔ اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ
तुम अपनी रवश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते। तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। और मजदूर अपनी मजदूरी सोराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो। हज्जी ने दोबारा कहा। अपनी रवश पर गौर करो। हज्जी लोगों से आखिर किस बात पर गौर व खोज करने को कह रहा था? हज्जी 1 बाब 9 से 11 आयत। तुमने बहुत की उम्मीद रखी और थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। रब्बुल अफवाज फरमाता है, क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इसलिए ना आसमान से ओस गिरती है और ना जमीन अपना हासिल देती है। और मैंने खुशक साली को तलब किया कि मुल्क और पहाड़ों पर और अनाज और नई मै और तेल और जमीन की सब पैदावार पर और इंसान व हैवान पर और हाथ की सारी मेहनत पर आए। बच्चों, 15 सालों के इस दौरानिया में लोग अपने घरों की तामीर को मचलते रहे, मगर जब खुदा की इबादत के घर की बात आती, टाल मटोल से ये कहकर काम चला लेते, अभी इस चीज का तो वक्त ही नहीं आया। तभी तो खुदा ने उनकी जिंदगियों में लाचारी और वसाइल में कमी पैदा कर दी। ऐसे ही वक्त हज्जी ने उनके हौसले बढ़ाए। हज्जी 1 बाब 13 आयत। खुदावन फरमाता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हज्जी 1 बाब 8 आयत। पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो और मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावन फरमाता है, हज्जी 1 बाब 14 आयत। बस वो आकर रब्बुल अफवाज अपने खुदा के घर की तामीर में मशगूल हुए। इबादत के घर की तामीर में रवानी। बच्चों, डरे सहमे और पसपा ज़हन लोगों ने हज्जी की बातों से महनीज पाई। खुदा ने भी उनसे वादा किया, तब कहीं उन्होंने काम शुरू किया। हज्जी 2 बाब 1, 3 और 4 आयत। 7वें महीने की 21वीं तारीख को खुदावन का कलाम हज्जी नबी की मार्फत पहुंचा। तुम में से किसने इस हैकल की पहली रौनक को देखा और अब कैसी दिखाई देती है? क्या ये तुम्हारी नजर में नाचीज नहीं है? लेकिन ऐ ज़रुब्बाबल, हौसला रख। खुदावन फरमाता है, और ऐ सरदार काहन यशवा बिन यहूसदक, हौसला रख। और ऐ मुल्क के सब लोगों, हौसला रखो। खुदावंद फरमाता है, और काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रब्बुल अफवाज फरमाता है। हज्जी 2 बाब 5 आयत। मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो अहद किया था, उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है। हिम्मत ना हारो। आखिर क्यों खुदा को वही बात फिर से दोहरानी पड़ी? हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हिम्मत ना हारो। बच्चों, खुदा ने फिर से उनके साथ रहने का वादा किया और बताया कि डरने की जरूरत नहीं है। खुदा जानता था ये 15 बरस सामरिया के लोग उन पर कैसा जबरो तशद्दुद करते रहे, और गिरदो नवा का माहौल भी कितना बदतर रहा।
खसूसन ये बात के उन्होंने दारा के पास उनकी शिकायत भी कर दी। वो बहुत ही सहमे हुए थे। दारा ऐसी उल्टी सीधी शिकायतें सुनकर कहीं भड़क ना उठे, उन्हें मारने या पकड़कर कैद में डालने को फौज ना भेज दे। चुनाचे खुदा ने हज्जी नबी की मार्फत उनकी हौसला अफजाई की और कहा, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। अगरचे उन्हें मिस्र से निकले और खुदा के साथ अहद बांधे 1000 साल से ज्यादा अरसा हो चुका था, खुदा को अब भी अपना वो वादा याद था। उसे हमेशा इस्राएली के साथ रहना था। खुदा ने ये वादा भी किया कि इस मस्कन की शान और शौकत उस पहले सुलेमान के बनाए मस्कन से बढ़ के होगी। अगरचे अब वाला मस्कन बहुत छोटा सा था, यहाँ तक के नजरों में नाचीज सा लगता था, मगर आने वाले दिनों में यहाँ खुदा की शान और शौकत का बसेरा होने को था। बच्चों, अगरचे लोगों ने नबियों की बातों और खुदा के वादों का यकीन भी कर लिया, उनमें हिम्मत और वलवले भी आ गए, मगर उनके पास ऐसे वसाइल तो नहीं थे कि हैकल की तामीर का साजो सामान मुहैया कर पाते, उसके अंदर की तज़य्युन व आराइश कर पाते। खुदा की तरफ से खजाने मुहैया करने का वादा। हज्जी 2 बाब 6 से 9 आयत। क्योंकि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में फिर एक बार आसमान व जमीन और बहरो बर को हिला दूंगा, मैं सब कौमों को हिला दूंगा और उनकी मरगूब चीजें आएंगी। चांदी मेरी है और सोना मेरा है। रब्बुल अफवाज फरमाता है, इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी। रब्बुल अफवाज फरमाता है, और मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है। कौमों ने देखा जब दारा बादशाह होरस के हुक्म की तस्दीक कर चुका, तो चूंकि मादियों और फारसियों के शाही फरमान बदले नहीं जा सकते थे, चुनांचे दारा ने भी हुक्म जारी कर दिया, अलावा इसके खुदा के इस घर के बनाने में यहूदियों के बुजुर्गों के साथ तुमको क्या करना है? सो इसकी बाबत मेरा ये हुक्म है कि शाही माल में से यानी दरिया पार के खराज में से उन लोगों को बलात वक़्फ़ खर्च दिया जाए ताकि उनको रुकना ना पड़े, और आसमान के खुदा की सोख्तनी कुर्बानियों के लिए जिस जिस चीज की उनको जरूरत हो, यानी बछड़े और मेंढे और हलवान और जितना गेहूं और नमक और मैं और तेल, वो काहन जो यरूशलेम में हैं बताएं, वो सब बिला नागा रोज बरोज उनको दिया जाए। बच्चों, खुदा ने कहा था, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। चुनाचे बुरे लोगों की बदख्वाही को खुदा ने अपने अंदाज में मोड़ते हुए दारा को इस काम पर लगा दिया कि फारसी सल्तनत की अमलदारी से खजाने इकट्ठे करे और खुदा की इबादत के घर की तामीर पर खर्च कर दे, क्योंकि खुदावद ही सारी जमीन का मालिक है और दुनिया के सारे खजाने उसी के हैं। चुनाचे अब लोगों को हैकल के तामीरी काम के दौरान मार डाले जाने की फिक्र नहीं रही थी। यहाँ तक के तामीर में इस्तेमाल होने वाला सामान और रोजमर्रा कुर्बानियों के जानवर भी दारा के हुक्म से बिला नागा मुहैया किए जाने थे। लोगों को किसी बात की फिक्र नहीं रही थी। हज्जी ने भी लोगों को ये बात खूब समझा दी। जब वो खुदा की इबादत का घर बनाएंगे, खुदा उनके घर भी बनवा देगा। पहले जब वो अपनी ही ख्वाहिशों के पीछे थे, लाचार हो गए,
मगर आइंदा के लिए खुदा ने उनसे बरकत का वादा कर लिया। हज्जी 2 बाब 18 से 19 आयत। अब और आइंदा इसका ख्याल रखो, आज खुदावंद की हैकल की बुनियाद के डाले जाने यानी नवे महीने की 24वीं तारीख से इसका ख्याल रखो। क्या इस वक्त बीज खत्ते में है? अभी तो ताक और अंजीर और अनार और जैतून में फल नहीं लगा, आज ही से मैं तुमको बरकत दूंगा। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, जब लोगों के दिलों में नबी की बातों पे तवज्जो करने और जुर्रतमंदी से हैकल की तामीर का जज्बा बेदार हो गया, तब तूने दुश्मन की चालों को उसी पर पलट दिया। दारा का हुक्म फौरी तौर पर आ गया कि यहूदियों को हर रोज की जरूरत के लिए मालो ज़र मुहैया किया जाए ताकि वो हैकल तामीर करें। जब यहूदियों ने मतलब परस्ती तरक करते हुए अपने घरों की तामीर से हाथ रोके, तब तूने उन्हें भरपूर पैदावार का हासिल दिया। प्यारे आसमानी बाप, तेरी बरकत पाना भी मछली के शिकार की मिसाल है। छोटी सी मछली का चारा कुंडी में फंसाकर बड़ी मछलियां बुला ले, तब माहीगीर जी भर के खूब पली पलाई मछलियां पकड़ते जाएं। प्यारे आसमानी बाप, तेरी यही ख्वाहिश है, हम तेरे हैकल को अपनी जिंदगियों में अहमियत दें, तेरी शान और तेरी मर्जी मुकद्दम जाने। जब तू हम पे मेहरबान हो जाए, हमारी हर जरूरत, हर कमी पूरी कर देता है। प्यारे आसमानी बाप, तेरा फरमान है, चांदी तेरी और सोना तेरा है, कौमों के सारे खजाने भी तो तेरी ही मलकियत है बाप, मेहरबानी फरमा कर मेरे दिल में देने की जोत जगा दे, तेरी हजूरी में रहूं, सबकी खिदमत करूं, क्योंकि ऐसा करने से ही मेरी हर कमी दूर होगी और तू मुझे ढेरों बरकतें देगा। प्यारे आसमानी बाप, मैं मानता हूँ मैं भी यहूदियों जैसा खुदगर्ज हूँ, हमेशा अपने ही फायदा की बातें सोचता हूँ, कभी किसी को कुछ नहीं देता, ना अपनी कलीसिया में किसी की कोई मदद करता हूँ और ना ही किसी भी शख्स के लिए कुछ छोड़ता हूँ। किसी को कुछ देते मेरी जान जाती है। आसमानी बाप, तू तो जानता है मैं बहुत दौलतमंद नहीं हूँ, मेरे पास खजानों का ढेर नहीं, अगर मैं बांटने लग पड़ा तो कुछ भी बाकी ना रहेगा। बाप, मेरी मदद फरमा, मुझे ताकत व हिम्मत दे, दूसरों को देने की लगन पाऊं, मुझे अक्ल और शऊर दे कि वो सब कुछ करूं जो तू मुझसे चाहता है, जिंदगी भर अपनी ही बेलगाम जरूरतों के पीछे मारा मारा ना फिरूं। यीशु के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। 2 कुरिन्थियों 9 बाब 7 आयत।